السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، بیٹیوں بیٹوں بہنوں بھائیوں سب کو اللہ تعالیٰ سب کی دلی مراد پوری کرے، اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود شریف پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب بیٹی نعت پڑھے گی۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہسوار براق و امیر علم، دافع ہر وبا دافع ہر بلا، دافع قحط و امراض و رنج و علم۔ اس میں لکھا گیا، اس میں اونچا ہوا، اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے، اس میں کی برکتیں، اس میں کی رونقیں، اس میں لوح و قلم کی امانت بھی ہے۔ کیا رب کیا جم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کا پاک وہ جو منافر کہے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سیک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہیں شب کی ظلمت کے محتاب ہیں، صدر بزمی بلندی و رفعت کے ہیں، راہ گزار ہدایت کے محتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے امان، ساری تاریکیوں کہ وہ روشن چراغ، نیک زینت وہ نیک اتوار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے عیاں، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہسوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا دافع ہر وبا، دافع قحط و امراض و رنج و علم۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، سبحان ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے گا۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ یعنی کہ آج جو بیان کریں گے ادب کے اوپر کریں گے، آتی اللہ و آتی الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے ادب کو معاف نہیں کروں گا، گناہ گار کو معاف کر دوں گا۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جس وقت آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر پہنچے، آپ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹے آسمان پر جب آپ پہنچے تو چھٹے آسمان کا جو فرشتہ تھا، جو چھٹے آسمان کے فرشتے ان کا سردار تھا، سب نے ادب کیا، یعنی کہ بابا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے کیا، مگر اس فرشتے نے اٹھ کر ادب نہیں کیا۔ جب آپ معراج سے واپس آ گئے تو کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، پر چھین لیے، کس کے؟ فرشتے کے پر چھین لیے، اور کہا کہ دفع ہو جا، تیری ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں چھٹے آسمان پر نوچ ناچ کر اس کو یعنی کہ پہاڑوں میں پھینک دیا۔ یعنی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جبریل امین وہی لے کر آ رہے تھے، تو
करनाने की और रोने की और तड़पने की आवाज़ आई। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने देखा कि ये पहाड़ों में से आवाज़ किसकी आ रही है। देखा तो छठे आसमान का जो फरिश्तों का सरदार वो ना पर है ना कुछ है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि भाई ये क्या बात, ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई, तुम तो छठे आसमान के वो हो ना, सरदार फरिश्तों के। कहा कि जी मुझसे गलती हो गई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर आ रहे थे तो मैं अदब के लिए खड़ा नहीं हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने मुझे जहो जलाल के अंदर मेरे पर छीन कर मुझे पहाड़ों में फेंक दिया। कहा कि तेरी ज़रूरत नहीं। कहा कि जिब्रील अमीन आप कहाँ जा रहे हो। कहा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ। तो छठे आसमान के फरिश्ते ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मेरा सलाम कहना और फिर मेरा हाल बता देना और कहना कि मेरी गलती माफ़ कर दें। जिब्रील अमीन पहुँचे दरबार नबी में। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जो पहाड़ है वहाँ पर छठे आसमान का फरिश्तों का जो सरदार था, आप महराज पर गए, वो आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उसको जहो जलाल के अंदर आकर कहा कि दफ़ा हो जाओ, पर भी छीन लिए, वो लूंडा पुंडा होकर पड़ा हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊँ इस नाम पर। कहा कि जिब्रील अमीन जल्दी करो और लेकर आओ उस फरिश्तों को। जब जिब्रील अमीन फरिश्ते को लेकर, छठे आसमान के फरिश्ते को लेकर दरबार नबी में पहुँचे तो उसने सलाम अर्ज़ किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी। कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि मैं फरिश्तों का सरदार हूँ। तो आप तो नबियों के सरदार हैं, नबियों के भी नबी हैं आप, अव्वल भी और आखिर भी। आपने गलती माफ़ की। जिब्रील अमीन ने जो पैगाम भेजा था अल्लाह ताला ने वो बताया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। जिब्रील अमीन ने तलब की कि या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दीजिएगा। कहा कि छठे आसमान के फरिश्ते को भी ले जाओ। फिर आपने दुआ की कि या इलाहुल आलमीन इसके पर वापस कर दे इसको। तो दुआएं जो हमारे नबी मांगे उसी वक्त जैसा पर थे वैसे ही उसके पर हो गए। कहा कि जिब्रील इसको भी ले जाओ साथ। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन बात कर रहे थे तो इजाज़त जब दी तो सबसे आगे वो छठे आसमान का फरिश्ता जिब्रील अमीन से भी आगे तो मुस्कुरा गए। जिब्रील अमीन कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के जितने भी फरिश्ते हैं सबसे ज़्यादा मेरी उड़ान है, तो ये तो मुझसे भी आगे जा रहा। तो कुर्बान जाऊँ उन अल्फाज पे क्या कहा आपने फरमाया कि ए जिब्रील तुझे पर अल्लाह ने दिए और इसको मोहम्मद ने दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इसको पर मोहम्मद ने दिए इसलिए इसकी उड़ान ज़्यादा है। जब अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन आता है तो अंगूठे भी चूमा करें। कल अंगूठों के बारे में भी यानी कि बयान करेंगे। बहुत से कहते हैं कि चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए, तो बड़ा दरूद नहीं तो छोटा ही पढ़ लिया करें। नात में कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो अंगूठे भी चूमें और दरूद भी पढ़ें। आप अब मेरे साथ मिलके दुआ मांगिएगा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तेरे जिक्र खैर की बरकत से, दरूद पाक की बरकत से, या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो नहा कैद के अंदर हैं उनको कैद से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो मांग रहे हैं उनको भी अता फरमा, जो तुझसे नहीं मांग रहे उनको भी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जब हमारा मौत का वक्त करीब आ जाए तो हम सब की ज़बान पे हो हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें जो भी आपको पूछना है, जो भी जिस चीज़ की वीडियो बनानी है हमें उसका लाजमी बताएं, हम कमेंट करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें और हमें दुआ में याद रखेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।